Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics in previous few months. So after that we have started to solve we have discussed the all the chapters, basically those chapter in which students facing the main problem. So first of all we have discussed the all theoretical part as well as the numerical questions of the chapter national income and the income determination and the multiplier. Okay, so after that we have started to solve the question paper. So first of all we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in October 2020. After that we have discussed CBSE examination paper of 2020. Next we have discussed CBSE examination paper of 2019 all India set. So we already discussed all sets as well as Delhi sets also we have discussed. And next we have started to solve the previous year questions of the different years. Okay, so different years questions like 2007, 8, 14, 15. We are continuously discussing all those chapter, and as well as we have also discussing those chapter in which students are facing the problem, as well as the chapter which is came in the next RT10. Okay, so you know very well that it is the chapter balance of payment. We have already given the RT of this chapter on the 22, but students are still facing the problems, minutely facing the component of current account, capital account, these. So in today's class also we are going to discuss the concept of balance of payment once again. Okay, so let's get started. Okay, so you know very well that is what is balance of payment. कि ये balance of payment होता क्या है? Okay, so balance of payment is, when we talk about in the simple terms, so it is the difference between the inflow of the foreign exchange and the outflow of the foreign exchange. Inflow of foreign exchange and outflow of foreign exchange. So simply a balance of payment is the difference between, it is the difference between inflow of the foreign exchange and the outflow of the foreign exchange. In other terms, we can also say that balance of payment is an accounting statement. Okay? It is simply a statement in which we have record all those economic transactions which is affect between the domestic currency and the rest of the world. तो ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं किस कहाँ के बिटवीन दी होम करेंसी और दी होम कंट्री, मतलब अगर इंडिया का किसके साथ और कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है, मीन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, unilateral transfer, income from investment, capital transfer, we have all these we have included in the balance of payment. So next topic, so simply balance of payment की जब हम बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे it is an accounting statement in which we record all the economic transactions between the country, between the home country and the rest of the world in an accounting year, or in other word we can also say that it is the difference between the inflow of the foreign exchange and the outflow of the foreign exchange. So the topic is components of balance of payment. Components of balance of payment. Okay.
So in this there are two components. First one is component of current account and component of capital account. So first one is component of current account and component of capital. Right? So it is divided into two. Component of balance of payment means कि कौन कौन से आइटम्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होते हैं. तो इसको दो में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन है आपका कंपोनेंट करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अब करेंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैपिटल अकाउंट्स के कौन कौन कंपोनेंट होते हैं. ओके. तो वी विल डिस्कस दीज टू वन बाय वन. हम इन दोनों को क्या है वन बाय वन पढ़ेंगे. तो पहला है आपका कंपोनेंट ऑफ meaning and the component of the current account. Meaning and components of current account. ठीक है. ओके. तो क्या कह रहा है. करंट अकाउंट ऑफ ए बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which do not cause a change in the asset and liabilities of the resident of the country or its government. Okay? तो ये जो करंट अकाउंट होता है बीओपी का वो क्या करता है. वो रिकॉर्ड करता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो क्या हो रहा है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है. बट इट डज नॉट कॉज इन द चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एनी रेसिडेंट और इट्स गवर्नमेंट. ठीक है. तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द कंट्रीज हो रहा है जो कोई भी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटीज को क्या कर रहा है अफेक्ट नहीं कर रहा है. तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट. मतलब अगर वो हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज इससे किसी भी कंट्री का क्या है मतलब बेसिकली द रेसिडेंट कंट्री का कोई भी हम बोल सकते हैं कि असेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट वो नहीं कर रहा है. ठीक है. वो क्या कर रहा है कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स तो कर रहे हैं बट जैसे असेट एंड लायबिलिटीज को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है. जो पहले भी थी वही असेट लायबिलिटीज किसी भी कंट्री की वैसी है. मतलब हम लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं या ऐसा कुछ परचेज कर रहे हैं जिससे हमारी हम लोन ले रहे हैं तो उससे हमको क्या है कि बोरोइंग कर रहे हैं तो हम क्या है लायबल है हमको पेमेंट करना है. तो ये सारे आइटम हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. इसमें हम वही सारे आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो रहे हैं विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट और इट्स गवर्नमेंट. की गवर्नमेंट और रेसिडेंट के कोई भी असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट वो नहीं कर रहा है. ठीक है. फिर कह रहा है current account contains the receipt and payment relating to all the transactions of the visible, invisible, unilateral and the income from the investment and the work. इसमें हम लोग वो सारे आइटम्स लेते हैं जो क्या है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रहा है जिसका रिसिप्ट एंड receipt and payment of all visible items. हम इसमें क्या ले रहे हैं विजिबल आइटम ले रहे हैं
इनविजिबल आइटम ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं इसमें हम लोग, यूनिलैटरल ट्रांसफर ले रहे हैं, यूनिलैटरल and the income from the investment. Income from investment and work. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ऑल विजिबल आइटम्स, all invisible items, unilateral transfer and the income from the investment and work. So all these items are recorded in the included in the current account. Okay, so कह रहा है कि the components of this type are export. सबसे पहला इसका component क्या हो जाएगा आपका, component की अगर हम बात करते हैं, components, तो मीनिंग हमने समझ लिया. मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है between the resident of the country and the rest of the world which do not cause any change in the asset and liabilities of the resident or its government, कि जो asset and liabilities को affect नहीं कर रहा है, कोई भी उसमें changes अकर नहीं हो रहे हैं, वो सारे आइटम्स हम क्या करते हैं इसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स. एक्सपोर्ट and import of visible goods. ठीक, next one is export and import इनविजिबल गुड्स. ओके, इनविजिबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनविजिबल आइटम्स को हम लोग सर्विसेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दिस सर्विसेज, हम लोग इसको सर्विस भी लिख सकते हैं. थर्ड वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर. Receipt and payments of unilateral transfers. And the last one is income, और जिसको हम बोलते हैं income from the investment और the एनी कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो इनकम कहाँ से इनकम हो रही है, कहीं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. सो ऑल इन्वेस्ट ओके, सो ऑल दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट. जब हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं तो करेंट अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. सबसे पहला क्या हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स, जो गुड्स को हम वी कैन टच, मेजर और द सीन, ये सारे आइटम्स क्या होते हैं इसमें रिकॉर्ड होते हैं. सेकेंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, जो डिफरेंट सर्विसेज हैं लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज को भी हम लोग कुछ भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड होगा, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड होगा. थर्ड है आपका रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर हो रहा है, वन साइडेड पेमेंट हो रहा है, वेदर इट इज एक्सपोर्टेड और द इंपोर्टेड, वेदर वी आर रिसीविंग और द पेइंग ऑल दीज यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट वी विल इंक्लूडेड, वी विल add in the current account. And the last one is income from the investment. So whatever the income, whatever the investment is done, whether it is done by the foreign countries in the resident or it is done by the resident to the foreign countries, all these items are the included in the current account.
Okay, so we will study all these items one by one. So firstly we will discuss the export and the import of the visible goods. ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स. So in foreign trade, export and imports of the goods have a major share. ठीक है, अगर हम लोग जब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका क्या है, बहुत ज़्यादा मेजर शेयर होता है. सो देयरफॉर देयर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि जब भी हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी है उनका मतलब आएगी भी हमारी कंट्री में, इनफ्लो भी होगा और हमारी कंट्री से जाएगी भी. जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री के गुड्स को तो वो बाहर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. वही हम क्या करें, हम वही गुड्स को इन तो उस कंडीशन में वो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया. बट अगर वही हम क्या है इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री में गुड्स को मंगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेन कंट्री को पेमेंट करना पड़ता है. तो ये क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो रहा है. मतलब अगर हम कुछ भी मतलब गुड्स का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिटवीन द कंट्री, सो वी हैव टू मेक अ पेमेंट. In that case we have to make a payment or receive the payment. So in that case the inflow and outflow of the foreign exchange happen. Okay, so in foreign trade, export and import of the goods have a major share, and therefore there will be inflow and outflow of the foreign exchange on account of export and import of the visible goods. ठीक है, अब जो भी करेंसी आती है हमारी कंट्री में from the export and import of the goods, so it will add in the current account, and in the current accounts export and import of the visible goods, all those items are recorded. Okay, so the payment of import is written on the negative side. Okay, so whatever we are doing the payment, how much amount, it is based up to the transactions between the country. सो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, तब वो क्या होगा, वो निगेटिव साइड मीन्स डेबिट साइड में इंक्लूड होगा. मतलब अगर हम लोग इंपोर्ट किए, गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आउटफ्लो ऑफ foreign exchange. FE is foreign exchange. That means हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, तो ये किस साइड रिकॉर्ड होगा, निगेटिव आइटम है. हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है तो निगेटिव आइटम, एंड किस रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड. ठीक है, मैंने बताया था ना कि डबल एंट्री बुक सिस्टम होता है, तो डेबिट और क्रेडिट करते हैं. तो जो भी अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने का मतलब है हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, निगेटिव आइटम है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट मीन्स वी आर रिसीविंग द पेमेंट. हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, पैसे को हम लोग, पैसा जो है वो हम लोग रिसीव कर रहे हैं. रिसीव तो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इनफ्लो, हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है. सो इट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है. दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव आइटम. ये क्या होगा, पॉजिटिव आइटम होगा. पॉजिटिव आइटम एंड इट विल इंक्लूडेड क्रेडिट साइड. ठीक है, ये किधर रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, फिर कह रहा है कि बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब इन्हीं दोनों का इक्वल, दैट मीन्स इफ इनफ्लो इज इक्वल टू द आउटफ्लो, if inflow of the foreign exchange is equal to the outflow of the foreign exchange, it is called as the balance of trade. इसको क्या बोलते हैं,
बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कंडीशन है, जब कंट्री में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द services. Right? So it includes services which is known as invisible item. ठीक है, जिसको services को जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है? सर्विसेज होती हैं। इट इंक्लूड सर्विसेज सोल्ड, जो हम सर्विसेज सोल्ड कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग की फैसिलिटी फॉरेन कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड परचेज बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और जो हम लोग सर्विसेज डिफरेंट कंट्री से ले रहे हैं, मतलब हम सर्विसेज दे रहे हैं और जो हम सर्विसेज को ले रहे हैं, तो ये सारे क्या आ जाएंगे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देयरफॉर देयर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, तब हमें पेमेंट मिलेगी। हमको मेरा क्या हो जाएगा? हमारी कंट्री का रेसिडेंट का रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज में इंक्लूड होगा। सो पेमेंट मीन्स अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, मेड फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द नेगेटिव साइड और द डेबिट साइड। वही सेम चीज है, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं दो सर्विसेज का इंपोर्ट ऑफ दी सर्विसेज, ये क्या होगा? आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, कंट्री से पैसा जाएगा, नेगेटिव आइटम और डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। वही क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो हमारी कंट्री में पैसा क्या आएगा? कंट्री में इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव आइटम है एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी के क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सो हाँ, पेमेंट ऑफ द इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, अगर बैलेंस क्या है कि इनविजिबल आइटम is equal to the invisible item of the exported services is equal to the invisible item of imported services. ठीक है, it is called the balance of invisible trade. इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। राइट, सो इनविजिबल आइटम अगर एक्सपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड सर्विसेज का जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल है? इनविजिबल आइटम इंपोर्टेड सर्विसेज, जो सर्विस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल। नेक्स्ट क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर। Receipt and payment of the ठीक क्या कह रहा है?
यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेज एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर में हम क्या लिखते हैं, सारे जो भी वन साइडेड रिसिप्ट हो रहे हैं, वन साइडेड पेमेंट हो रहे हैं, मतलब किसी कंट्री से हमें गिफ्ट और डोनेशन मिल रहा है या हम किसी कंट्री को गिफ्ट एंड डोनेशन दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी हमको तुरंत देगा। ये क्या है, वन साइडेड पेमेंट होता है। सो these refer to those receipt and payment which take place without any corresponding services in return in the current period। कि उसी करंट पीरियड में, करंट सिचुएशन में हम कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि हमें एट दैट सिचुएशन तुरंत रिटर्न में कुछ मिलेगा। ठीक है, सो रिसिप्ट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमें क्या है, रिसिप्ट मिल रहा है, मतलब कहीं से किसी कंट्री से हमें क्या है कि कोई गिफ्ट और डोनेशन मिल रहा है, तो रिसिप्ट हो रहा है, मतलब हमारी कंट्री में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो अगर हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, दैट मीन्स पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव हो गया, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड। राइट, नेक्स्ट है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर किसी कंट्री को हम गिफ्ट और डोनेशन पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री से क्या है, पैसा जा रहा है, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब पैसा जा रहा है तो ये क्या हो गया, निगेटिव आइटम हो गया है। हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे पैसा जा रहा है, पैसा निकल रहा है हमारी कंट्री से, तो ये क्या हो गया, निगेटिव आइटम हो गया एंड रिकॉर्डेड इन डेबिट। ये क्या होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर आउटफ्लो हो जाएगा, इज शोन इन द नेगेटिव, एंड द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। जब ये बैलेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ, अगर बैलेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर किसके इक्वल हो जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, इट इज known as the balance of unilateral transfer. ठीक है, next and the last component of the current account is income from the investment. Right? So income earned like dividend from the investment, interest on capital, profit from the branches on the Indian companies abroad and salaries from work abroad। ठीक है, तो इनकम हम लोग कैसे लेंगे, अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में कुछ डिविडेंड मिल रहा है, कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई भी ब्रांचेस हैं इंडियन कंपनी की बाहर है, अब्रॉड में कोई ब्रांच है, उससे कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम अबव विल एंटर्ड इन दी पॉजिटिव साइड, मतलब अगर हमको क्या है कि कुछ रिसीव हो रहा है, मतलब उनका क्या है, बेसिकली हमारी कंट्री की कुछ क्या है कि बाहर ओपन है, मतलब एफडीआई कर रहे हैं हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनी की कुछ ब्रांचेस बाहर हैं, वहाँ से अगर हमको क्या मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रहा है, अगर रिसिप्ट मिल रहा है दैट मीन्स इट इज दी इनफ्लो, इनफ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव आइटम है, पॉजिटिव आइटम है तो इट विल इंक्लूडेड इन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई फॉरेन कंट्री की कोई भी कंपनी है, उसका ब्रांच हमारी कंट्री में है,
तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कैपिटल पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री से पैसा क्या जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। एंड व्हेन देयर इज आउटफ्लो, नेगेटिव आइटम है और नेगेटिव आइटम है, सो इट विल इन दी डेबिट साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट होता है तो इनफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का, पॉजिटिव आइटम एंड द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन, अगर पेमेंट है तो आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, नेगेटिव आइटम है एंड द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट।